أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، شکر ہے کلاس شروع ہونے تک 3 سینٹرز تو آ گئے ہیں۔ تو ویسے سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ 11 بجے کلاس شروع ہونی ہے، تو 5-10 منٹ پہلے ہی جوائن کرنے کی کوشش شروع کر دیا کریں تاکہ آپ 11 بجے کلاس میں موجود ہوں۔ اب یہ جی میم، سینٹرز جو نہیں آئے وہ یقیناً کوئی نیٹ کا پرابلم فیس کر رہے ہوں گے۔ اگر پہلے جوائن کر لینا تو انہیں پہلے ہی پتہ چل جائے کہ ہمارے انٹرنیٹ کا کیا مسئلہ ہے اور ہم اس کو حل کروائیں۔ تو بہرحال کلاس شروع کرتے ہیں۔ آئیے قرآن سمجھیں، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج کا سبق ہے 6A، ہماری چھٹی کلاس ہے، اور اس میں ہم قرآن پاٹ بھی پڑھیں گے، گرامر بھی پڑھیں گے۔ قرآن میں ہوگا فجر کی اذان میں آنے والے نئے الفاظ، پھر اقامت اور وضو کے بعد کی دعا ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم کچھ نئے حروف بھی سیکھیں گے، جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے 3 حروف سیکھے تھے، آج کی کلاس میں مزید 3 نئے حروف سیکھیں گے۔ آخر پہ نقطۂ تعلیم یا شوق ہوگا۔ کل ملا کر اس سبق میں ہمیں صرف 6 نئے لفظ سیکھنے ہیں، صرف 6 لفظ، لیکن یہ 6 لفظ قرآن میں 3796 دفعہ آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کلاس کے آخر تک ہم مجموعی طور پہ 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 23,267 دفعہ آئے۔ تو انشاءاللہ یہ الفاظ کی بیٹری بھی جو ہے آج انشاءاللہ 20,000 سے اوپر جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہوم ورک ہیں، انہیں کرنا نہ بھولیں۔ یہ 2 تلاوت کے ہوم ورک ہیں۔ 5 منٹ آپ نے حافظے سے تلاوت کرنی ہے جو آپ کو زبانی یاد ہے، 5 منٹ قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنی ہے۔ 2 ہوم ورک آپ کے پڑھنے کے ہیں، آپ چاہے کتاب سے پڑھیں، جو ہم سلائڈز شیئر کرتے ہیں ان سے دیکھ کے پڑھیں، چاہے الفاظ منی کا جو کارڈ ہے اس کو بھی دیکھ کے پڑھا کریں، ٹائم بائی ٹائم، روزانہ۔ کارڈ کو تو روزانہ پڑھا کریں۔ 5واں ہوم ورک ہے وہ ویڈیو دیکھنے کا، سننے کا، جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ اور پھر 6واں ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنی ساری ساتھی ہیں، ایک دوسرے کی کلاس فیلوز ہیں، ساری مل کر اپنے 2-2 3-3 یا 4-4 لوگوں کا گروپ بنا لیں اور مل کر کام کیا کریں، مل کر ایک دوسرے کو سیکھا اور سکھایا کریں۔ 7واں ہوم ورک ہے بہت اہم کہ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، مزید بھی چھوٹی چھوٹی نئی صورتیں یا کچھ آیات یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، اور نماز میں صورتیں بدل بدل کر آپ نماز پڑھا کریں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اب اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، کیونکہ اگر ہم نظر انداز کریں گے تو اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، وہ ہماری جگہ کسی اور کو قرآن سمجھنے کی توفیق، ہمت، مواقع دے دیں گے، تو یہ کوئی اور سیکھے گا اگر ہم اس سیکھنے کی قدر نہ کریں گے تو۔ ربی زدنی علما کی دعا ضرور پڑھا کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ پاکٹ بک برائے الفاظ و معنی، یہ آپ کی الفاظ معنی کی شیٹ بھی کہلاتی ہے، بڑا پیارا سا کارڈ ہوتا ہے، اسے بار بار دن میں مختلف اوقات میں بار بار کھولیں۔ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے معنی لکھے ہوتے ہیں، بس دیکھ کے پڑھیں، دہرائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کورس کے آخر میں تمام الفاظ کے معنی یاد ہو چکے ہوں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اذان کا ترجمہ، پوری اذان کا ترجمہ سیکھا تھا، لیکن آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے نا، وہ باقی اذانوں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ آپ کے پاس سلائڈ نہیں آ رہی نا؟ کون سی سلائڈ آ رہی ہے نظر؟ میم۔ پاکٹ بک والی سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ نہیں میم جی، الصلاۃ خیر من اچھا النوم کی ٹھیک فجر ہے۔ فجر کی اذان میں کچھ الفاظ نئے اور مختلف بھی کہے جاتے ہیں، جو ہماری
बाकी चार अजानों में नहीं होते। तो वो कौन से नए अल्फाज हैं, कौन से मुख्तलिफ अल्फाज हैं, उनका तर्जुमा आज सीखेंगे। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह जब मुअज्जिन कहते हैं, दो दफा कहते हैं, तो उसके बाद वो दो दफा एक और जुमला दोहराते हैं। वो जुमला क्या है? वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ठीक है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये मुअज्जिन दो दफा कहता है, और ऐसा सिर्फ फजर की अजान में कहा जाता है। अब हम सीखेंगे कि क्या है ये लफ्ज, जो ये अल्फाज क्या हैं, ये जुमले क्या हैं जिनको दो दफा दोहराया जाता है फजर की अजान में। क्योंकि सारी रात हम सोए होते हैं, सोने का वक्त होता है, और उस वक्त में नींद आती भी बहुत ज्यादा है। तो वहां अजान में ये अल्फाज कहने की एक बड़ी ये वाली हिकमत और मसलहत भी है कि इंसान को झंझोड़ा जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, उसमें शौक पैदा किया जाए। क्या कह के? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। तो एक एक लफ्ज को देख लेते हैं। अस्सलातु, अब आप सब बताएं, अस्सलातु ये फेल है, इसम है, या हर्फ है? कैसा लफ्ज है ये? इसम है। इसम है। सब बताएं। किसी एक की आवाज नहीं आनी चाहिए, बाकी सबका माइक ऑफ है। बोलो। इसम है। इसम है। लेकिन ये भी बताइए कि ये किस तरह का इसम है, आपको कैसे पता चला ये इसम है? ये कैसे? ये खास कैसे पता चला इसम है? है। ताकत कौन सा है? मुझे आवाज तो आ रही है, समझ नहीं आ रही। खैर मैं बताती हूँ। ये जो शुरू में अल लगा हुआ है, ये इसम की पहचान होती है ना। अगर किसी लफ्ज के शुरू में अल लिखा ये हो, खास है। या किसी लफ्ज के शुरू के सॉरी, किसी लफ्ज के तो आखिर में गोल ता हो ना, ये भी इसम की निशानी होती है। और अल कौन सा इसम होता है, अल वाला? खास इसम। शाबाश, खास इसम। और जो गोल ता, आम तो हमेशा नहीं, ये बात याद रखिएगा, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर वो इसम जो गोल ता पे खत्म होते हैं, वो कौन से इसम होते हैं? मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस अदद इसम कौन मुअन्नस के लिए। ठीक है। अक्सर वो अरबी अल्फाज, वो अरबी इसम जो गोल ता पे खत्म हो, वो मुअन्नस होते हैं। हमेशा नहीं, सारे नहीं, लेकिन अक्सर। ठीक है। तो ये है अस्सलातु। 4 मिनट मैंने अस्सलातु के लफ्ज पे लगा दिए हैं। अब आपको अस्सलातु की बहुत अच्छी ग्रामर आनी चाहिए। दूसरों को भी सिखाएं, आज ही जाके किसी और को भी सिखा दें, तो इंशाल्लाह फिर ये आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है। तो अस्सलातु का मतलब होता है नमाज। ठीक है। ये है भाई नमाज। और इसको इस तरह भी लिखा जाता है जैसे आपको यहाँ लिखी नजर आ रही है, और कभी कहीं पे आपको ये ना लाम के ऊपर खड़ी जबर नहीं, बल्कि लाम के ऊपर सिर्फ जबर, और वाव की जगह पे अलिफ, सलात, ऐसे भी लिखा हुआ नजर आ सकता है। तो कुरान में वैसे उस तरह नहीं लिखा होता, इसी तरह लिखा होता है जैसे ये अभी आपके सामने है। तो अस्सलातु नमाज, खैरुन। अच्छा आप ये बताएं, इसम फेल इसको तो हर्फ ये बेटा। क्या? मैं तो डालता हूँ। हम्म, जल्दी बताया करें। हर्फ है। ये क्या है, इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? खैर, हर्फ है। खैरुन। हर्फ है। हाँ तो जी, ये हर नहीं है, किसने कहा है हर्फ है? हर्फ नहीं है। सोचें ये दो। जरा, ये किस तरह खत्म ये हो रहा है? दो पेश है। दो पेश पे खत्म हो रहा है ना। तो दो जेर, दो जबर, दो पेश पे खत्म होने वाले अल्फाज क्या होते हैं? इसम के। इसम होते बेटा। हैं, और आम इसम होते हैं। ठीक है। ये इसम होने की भी निशानी है, और ये आम होने की भी निशानी है। कोई लफ्ज दो जेर, दो जबर या दो पेश पे खत्म हो तो वो आम इसम होता है। तो इसलिए खैरुन का लफ्ज जो है ये इसम है। ठीक है। नमाज खैरुन बेहतर है। ठीक है। खैर का मतलब क्या है? बेहतर। हम खैर का लफ्ज उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज को हमने अच्छा, बेहतर, ठीक कहना हो तो हम कहते हैं खैर है। ठीक है। खैर लफ्ज जो हम बोलते हैं ना, वो असल में खैर ही है। खैरुन बेहतर है। मिनन ये नौ। लगाओ। मिन का मतलब सब बताएं मिलके, मिन है का तो मतलब मैं। क्या होता है? ये। से। ठीक है। और मिन है क्या?
इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? हर्फ। हर्फ है। ये पिछली क्लास में हमने सीख लिया है, मिन का मतलब से, और वो हर्फ हो गया। अब अगला लफ्ज है नऊम। तो नऊम को बताएं, नऊम क्या है? इसम, फेल, हर्फ, क्या चीज है ये? ये कौन? इसम। फेल किसने कहा है? जिसने फेल कहा इसम है। है वो भी बताएं कि उन्हें ये फेल किस तरह लगा, और जिन्होंने इसम। इसे इसम कहा है वो भी बताएं कि उन्हें ये इसम कैसे लगा। ये अननौम लिखा हुआ है ना, यहां से देख के मुझे बताएं ये इसम फेल हर्फ में से क्या है। सारे जल्दी मिल के बताएं, इतना टाइम मत लगाया करें बताने में। हाँ, मैम ये ईसम है क्योंकि इसके शुरू में अल है। शाबाश, ये अल करीम में से किसी ने बताया, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गई सबको? ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया है, अस्सलात में मैंने आपको यही तो बताया है कि अगर कोई लफ्ज अल नहीं से मैम जब शुरू हो रहा बताया पहले हो, बताया। तो ये देखिए नौम भी तो अल से शुरू हो रहा है ना, तो ये इसका इसम है। मैं जब पूछूं तो आपको फौरन बता देना चाहिए था कि ये इसम है। इतना बड़ा अल लिखा हुआ तो है, ये बहुत बड़ी निशानी है उसके इसम होने की। अच्छा जी, अब देखते हैं नौम का मतलब क्या होता है। नौम का मतलब होता है नींद। ठीक है, नींद। हाँ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। कैसे बेहतर है नींद से? इसलिए कि नींद जो होती है वो मौत के बराबर है। कहते हैं जो सुत्ता ते मरया एक बराबर, पंजाबी वाले कहते हैं ना, सुत्ता मोया एक बराबर। तो वो नींद मौत की छोटी बहन होती है, इसलिए नींद मौत के बराबर है। लेकिन नमाज क्या है? वो असल जिंदगी है। क्योंकि नमाज आप सोते हुए नहीं पढ़ सकते, नींद में नहीं पढ़ सकते, आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़ेगा। नमाज जो है वो अल्लाह की पुकार है। अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो हम नमाज के लिए हाजिर होते हैं। जबकि नींद हमारे नफ्स की पुकार होती है। हमारा दिल कर रहा होता है या हमारे जिस्म की जरूरत होती है कि अब मैं सोऊं, मुझे नींद आई है। फिर अमूमन नींद जो है वो जिस्म के लिए राहत है, वो जिस्म की जरूरत भी है। हमेशा आप जागते ही नहीं रह सकते, आप हमेशा हर वक्त नमाजें ही नहीं पढ़ सकते। आपने आराम भी करना होता है, सोना भी होता है। तो वो हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए राहत है। लेकिन नमाज जो है ना वो हमारी रूह के लिए राहत है। इसलिए जो नींद है उसका तो फायदा हमें तब तक ही है जब तक हमारा जिस्म जिंदा है। हमारा जिस्म मर जाए तो फिर सोना जागना क्या, फिर तो एक ही दिन ही होता है कि बस बंदा अब रोजे हशर ही उठेगा। तो फिर तो नींद की जरूरत नहीं रहती ना, फिर खुद ब खुद ही नींद तारी हो चुकी होती है, एक लंबी नींद, कयामत के दिन तक की नींद। जबकि नमाज जो है वो रूह के लिए राहत है। तो इसका मतलब ये है कि नमाज हम पढ़ेंगे तो रूह तो हमेशा रहती है कहीं ना कहीं, मरने के बाद भी रूह कहीं ना कहीं मौजूद होती है, किसी अच्छे हाल में या खुदा ना खास्ता किसी बुरे हाल में। तो नमाज जो है वो हमेशा के लिए राहत होती है, क्योंकि रूह ने तो रहना है। हमारे और साथ। फजर के वक्त क्या होता है? फजर के वक्त ये खास बात है कि फजर के वक्त नींद जिस्म के लिए नुकसानदेह है, हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, और हमारी रूह के लिए भी नुकसानदेह है। जो इंसान फजर के वक्त नहीं उठता वो सुबह के वक्त ताजगी के साथ नहीं उठता, वो फ्रेश नहीं उठता, उसके जिस्म में बीमारी के जरासीम होते हैं। तो सुबह सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, इससे हमारी रूह को तो फायदा होता ही है, हमारे जिस्म को भी बहुत फायदा होता है, हमारे दिमाग और दिल को भी बहुत फायदा होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो बात अजान में कही जाती है ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से, इसमें बहुत बड़ी हिकमत और मसलहत है। अब आइंदा आप जब भी अजान सुनेंगी और आप ये अल्फाज सुनेंगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो अब जो आपको दिल में एक फीलिंग होगी ना वो बहुत मुख्तलिफ होगी, होनी चाहिए, अल्लाह करे। तो अब सारे इसको रिपीट करें, अस्सलातु नमाज बेहतर है मिनन नौम, नींद से। बेहतर है बिना नाउ नींद से। नींद से। कितना आसान जुमला है ना। इसको आज किसी को भी जाकर सिखा दें, सुना दें, पढ़ा दें, आप देखिएगा आपको भी फायदा होगा, अजर भी मिलेगा, और कोई अगला दूसरा शख्स भी सीख लेगा इंशाल्लाह।
उसके बाद क्या है, अकामत के वक्त इजाफी अल्फाज कहे जाते हैं। यानी अकामत कौन सी होती है, जब अजान होती है उसके कुछ देर बाद मस्जिद में इमाम साहब नमाजियों को बाजमात नमाज पढ़ाते हैं ना, वो नमाज शुरू करने से पहले भी पूरी अजान दोबारा कही जाती है। लेकिन उस अजान में हय्या अलस सलात और हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम वाले अल्फाज सिर्फ फजर में कहे जाते हैं, मुकम्मल अजान में। लेकिन अकामत के वक्त जमात खड़ी होने से पहले पूरी अजान कहते हुए हय्या अलल फलाह के बाद ये जुमला 2 दफा कहा जाता है। ये जुमला क्या है, कद क़ामतिस सलात, कद क़ामतिस सलात। अब यहाँ देखिए ये सलात कैसे लिखा हुआ है, ये वाव नहीं लिखा हुआ ना, और लाम के ऊपर खड़ी जबर नहीं। यही मैं आपको बता रही थी कि सलात दोनों तरह से लिखा जाता है। अब ये क्या है, कद अलबत्ता। कद का मतलब क्या है, अलबत्ता। तो आपके जहन में आ रहा होगा अलबत्ता क्या लफ्ज होता है। हम आमतौर पे अब उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अलबत्ता का मतलब वैसे होता है कि हकीकतन, यकीनन। ठीक है, आप इसे हकीकतन यकीनन तर्जुमा भी कर सकते हैं। और जैसे अरेबिक में इंग्लिश में कहते हैं ऑलरेडी, ये मैं तो पहले ही ये कर लिया, तो इस बात का मतलब है पहले ही खड़ी हो चुकी है नमाज। ठीक है, कद अलबत्ता या ऑलरेडी या हो चुका, जो काम हो चुका होता है ना उसे कहा जाता है कद अलबत्ता, हो चुका या हो चुका, ऑलरेडी। कामत, कामत ये मुअन्नस वाला लफ्ज है, ये वाला कामत, खड़ी हो गई। ठीक है, क्या खड़ी हो गई, अस्सलातु नमाज। अजान इस बात का ऐलान होता है कि लोग मस्जिद में आए। अकामत इस बात का ऐलान होता है कि जो लोग मस्जिद में आ गए हैं वो अब इमाम साहब के पीछे आके खड़े हो जाएं क्योंकि नमाज शुरू होने लगी है। तो ये अब क्या बनेगा, अलबत्ता खड़ी हो गई अस्सलातु नमाज। अब मुझे दोबारा तो अस्सलात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। मुझे बताएं जरा, अस्सलात क्या है, इसम है, फेल है, हर्फ है। इसम है, इसम है। शाबाश, आपको कैसे पता चला ये इसम है। इस, इसके शुरू में अल है, खास और इसम है। और आखिर में और आखिर में गोल ता है। अलिफ आया। शाबाश, अलिफ अच्छा। लाम। ये जो शुरू में अल आया है ये किस तरह के इसम की निशानी है, खास इसम। खास इसम की। वेरी गुड। और जो गोलता आखिर पे आई है वो किस तरह के इसम की निशानी है, मोनस इसम। मोनस। मुअन्नस इसम की। अब ये बात सबको पता चल गई है, अर रहीम सेंटर वाले, अल करीम सेंटर वाले, अर रहमान सेंटर वाले और अशकूर सेंटर वाले, सबको पता चल गई। जी मैं। ठीक है, जी अशकूर वाले जी। बहुत खामोश, बड़े संजीदा मिजाज लोग हैं। आज दुरानी कॉम्प्लेक्स नहीं है, रहीम कॉम्प्लेक्स, अच्छा वो है। दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले नहीं है क्लास में आज, तो सिस्टर अनम भी नहीं है। अब मुझे पता एमडी नहीं चल, कराने का नेट का इश्यू है। अच्छा चले ठीक है। अजान के इजाफी अल्फाज फजर के वक्त के, अकामत के हमने सीख लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमने सीखने हैं वजू के पहले और बाद के अज़कार। वजू हम नमाज पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए, इबादत करने के लिए करते हैं ना, तो उस वजू का भी एक तहजीब और एक तरीका है जी। इस्लाम में। क्योंकि आप इबादत अल्लाह के लिए करने लगे हैं, अल्लाह के लिए इबादत करने का एक पूरा तरीका होता है। तो वजू उसका एक हिस्सा है। वजू शुरू करने से पहले कहते हैं बिस्मिल्लाह। कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, कोई लंबे चौड़े अल्फाज नहीं है। वजू आपने शुरू करने से पहले कहना है बिस्मिल्लाह, फिर आपने हाथ धोने हैं और बाकी वजू करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा तो मुझे नहीं सिखाना चाहिए ना, वो आप मुझे बताएंगे क्यों। ये तो हम बहुत शुरू की क्लासेस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा सीख नहीं चुके, तो फिर जी आप मैं। बताएं। अब आप मुझे बताएं बिस्मी का शुरू अल्लाह मतलब के क्या नाम, है। नाम से अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह के। ही अल्लाह के। तो अगर मैं पूछूं शुरू अल्लाह अल्लाह के क्या नाम है, से। शुरू अल्लाह के नाम से। ठीक है शाबाश। अब मुझे बताएं अल्लाह क्या है, शुरू इसम अल्लाह फेल हर्फ क्या है। खास इसम है। शाबाश, खास इसम। इसम है। नाम है ना, किसका नाम है, अल्लाह का नाम है। अल्लाह का। हमारे माबूद का नाम अल्लाह है। ठीक है, तो इसलिए बाकी बी जो है, बी ये हर्फ होता है। ठीक है, ये जो लफ्ज है ये शुरू में आपको बताया था इसम,
یہ جو ہم اسم فعل حرف کہہ رہے ہیں نا، وہ وہی والا اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی والا اسم ہے، اس لیے یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، شروع میں جو با ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، ٹھیک ہے، دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ چاہے جس سے داخل ہو جائے، چاہے جس سے سبحان اللہ۔ چاہے داخل ہو جائے۔ اس حدیث کے الفاظ کو یاد رکھنا ہے، یہ آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وضو کی دعا کی فضیلت کیا ہے۔ وضو کی دعا کی فضیلت پوچھی جا رہی ہے۔ لوگ نا وہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹس فضیلت والی میں دعا کے کوئی لفظ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ وہ جو دعا ہوتی ہے وہ لکھنا شروع ہو جاتی۔ دعا نہیں لکھنی، جب فضیلت پوچھی جائے گی تو آپ نے فضیلت ہی لکھنی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ دھیان سے وضو کریں اور پھر یہ دعا پڑھیں جو ابھی آنے والی ہے، ابھی آگے دکھائی جائے گی۔ تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ انسان چاہے جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے۔ اب وہ دعا کیا ہے جس کے پڑھنے کی وجہ سے 8 دروازے جنت کے کھلتے ہیں؟ وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ تو ہمیں آج سیکھنا نہیں پڑے گا، کیوں؟ یہ تو ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ کب سیکھ چکے ہیں؟ اذان کے الفاظ میں ہم نے یہ سیکھا تھا نا، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان، کے، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، سوائے، اللہ، لا اللہ، الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ ویری گڈ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ اذان میں سیکھ چکے ہیں، اس کی تشریح بھی آپ نے اذان میں دیکھ لی ہے، ابھی میں آپ کو صرف ایک ریمائنڈر دے رہی ہوں جو اس دن تشریح میں بھی ہم نے کہا تھا، وہ ہے کہ موت کو یاد رکھیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص مرنے کے قریب ہو اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ اور یہ بھی ہم نے اس تشریح میں دیکھا تھا کہ کسی ایمرجنسی میں ڈیوٹی لگنے والے ڈاکٹر کی بات تھی کہ اس نے اپنی سروس کے دوران بہت سے کچھ لوگوں کو، یہ 11 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن ان میں سے صرف 1 یا 2 نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ تو اس کلمہ کی اہمیت کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت زبان پہ رہے تو انسان کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے، لیکن اگر ہر وقت ہماری زبان پہ غیبتیں، برائیاں، غلط الفاظ، غلط باتیں، میوزک سننا، گانے گانا، یہ سب کچھ ہماری پریکٹس ہوگی تو پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی تو بہت بڑی گواہی ہے، پھر ایسے شخص کو مرتے ہوئے تو وہ گواہی مشکل ہے کہ ملے، نہیں ملتی۔ اگلے الفاظ کیا ہیں یہ ہمیں سیکھنے پڑیں گے۔ پہلی لائن جو تھی نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ تو اذان کے الفاظ میں آئی تھی، وہ ہم نے سیکھ لیے تھے، یہ نئے الفاظ ہیں۔ اب یہ وہ دعا چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں ہے نا، یہ ابھی دعا چل رہی ہے جو وضو مکمل کرنے کے بعد پڑھنی ہوتی ہے۔ وہ کیا دعا ہوتی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے ہم کہتے ہیں وحدہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، وحدہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا واحد، احد، توحید، عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان سب کے معنی جو ہے نا کوئی ایک ہی فیملی میں سے آئے ہوئے ہیں یہ الفاظ، اس لیے ملتے جلتے معنی، واحد ایک، احد اکیلا، توحید اکیلا ہونا، ٹھیک ہے، کسی کا ایک اکیلا ہونا۔ تو اس لیے آپ نے وحدہ کا مطلب ایسے یاد رکھنا ہے، واحد سے یاد رکھ لیں زیادہ آسان ہوگا، واحد سے، وحدہ وہ اکیلا ہے، یعنی وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ آدھا اور تھوڑا سا بھی نہیں ہے، وہ خود ہے اور پورا ہے اور اکیلا ہے۔ لا، لا کا مطلب آپ سیکھ چکے ہیں، نہیں ہے۔ شریک، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا شریکا، پنجابی میں کہتے ہیں شریکا، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پارٹنرز۔ تو اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصے دار نہیں ہے، لا شریکا، کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک۔ اب یہ جو شریک لفظ ہے نا یہ واحد ہے، یہ دیکھیں واحد، شریکن واحد،
शुरका जमा, शरीक वाहिद शुरका जमा, शरीक वाहिद शुरका जमा। इस लफ्ज को सीख लें अच्छी तरह। शुरका का लफ्ज या शरीक के लफ्ज ये कुरान में 40 दफा आए हुए हैं। शरीक, हिस्सादार, पार्टनर, और इस तरह के अल्फाज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। शरीक भी कहते हैं, शुरका का लफ्ज भी बोलते हैं। यानी इस क्लास में आप सब जो बैठे हुए हैं, आप कौन हैं? आप शुरका हैं। ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और शिरक और मुशरिक, जो शिरक करता है वो मुशरिक होता है। शिरक करना शिरक कहलाता है। आखिरी लफ्ज है लहू। ये दो अल्फाज हैं। ठीक है, टुकड़े करेंगे तो दो टुकड़े बनेंगे, ला अलग होगा, हु अलग होगा। ला या ली हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये हर्फ होता है और इसका मतलब होता है लिए। ठीक है, लिए। और का भी होता है। हु, हु तो हम पहले ही कर चुके ना, हु उसका, उसकी, उसके, उसको। ठीक है, उसे। लहू उसके लिए। कोई, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसके लिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। अब इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? वहदानियत का इकरार 3 दफा। यानी ये जो हमने पहले कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक इकरार हो गया कि अल्लाह वाकई एक ही है, माबूद है। वाहदहू, वो अकेला है, ये दूसरा इकरार हो गया। ला शरीका लहू, उसके लिए कोई शरीक नहीं है, ये तीसरा इकरार हो गया। यानी एक ही जुमले में 3 दफा इस तरह की बात कह के हम शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान करते हैं। शिर्क को अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि अल्लाह बड़े से बड़े गुनाह भी माफ कर देंगे। वो बादशाह है, उस, वो जो चाहे करे। तो वो चाहेगा तो हमारे बड़े से बड़े गुनाह भी माफ कर देगा। लेकिन शिर्क के बारे में अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि ये सबसे बड़ा जुल्म है। मेरे पास शिर्क लेके ना आना, ये मैंने बिल्कुल नहीं माफ करना। इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे मुसलमान ने किया हो शिर्क या किसी काफिर ने किया हो। मुसलमान को भी शिर्क की सजा भुगतनी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। शिर्क की माफी नहीं है। नबी ने जो सिफारिश करनी है ना, शिफात करवानी है, वो गुनाहों पे करवानी है, शिर्क पे नहीं करवानी। तो शिर्क की सजा भुगतनी पड़ती है। टिल देन के आपने मरने से पहले सच्चे दिल से माफी मांग ली हो, तौबा कर ली हो और अल्लाह ने वो तौबा कबूल कर ली हो, और शिर्क आपने छोड़ दिया हो, फिर उसकी माफी होती है। लेकिन इंसान शिर्क करते हुए चला जाए दुनिया से, फिर वो माफी नहीं है उसकी, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और नबी भी शिर्क के लिए सिफारिश नहीं करवाता। शिफा, जो मुशरिक होता है ना, उसकी शिफात नहीं होती। गुनाहों की के लिए शिफात होती है। हर शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए ये वाली दुआ पढ़े ना, तो फिर हमें इंशाल्लाह अमल की भी तौफीक होगी। अब इसको भी रिपीट करें। वाहदाहू, वो अकेला है। अकेला ला है, ला शरीका शरीका लहू, उसकी है, कोई शरीक उसका। लहू उसका। कोई शरीक का कोई शरीक लाहू उसका। ठीक है, अब हम आगे देते हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, और उसके रसूल है। रसूल हैं। ये ये जो है ना, व रसूलु, अब्दुहु को निकाल के बाकी अल्फाज हम पहले सीख चुके हैं इनका तर्जुमा। देखें, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमने कर लिया। ये नया लफ्ज आया है, अब्दु हु। दो टुकड़े बनते हैं, एक लफ्ज अब्द है, वो अल्लाह का। एक लफ्ज अब्द बनता है, दूसरा लफ्ज है हु। अब्द भी इसम है, हु भी इसम जमीर है, जोड़ के लिखे जाने वाला। तो अब्द का मतलब है बंदा, हु उसका, यानी किसका? अल्लाह का। अल्लाह का। उसका बंदा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि वो उसका बंदा है। किसका बंदा है? अल्लाह का बंदा है। अल्लाह का। जैसे हम लड़कों का नाम बोलते हैं अब्दुल्ला, वो क्या होता है? अब्द, बंदा, अल्लाह ही अल्लाह का, अल्लाह का बंदा, ये मतलब होता है उस नाम का। तो अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, ये देखिए दो टुकड़े हैं ना, और अब्द वाहिद है, इबाद जमा है। अब्द एक बंदा, इबाद ज्यादा बंदे, अब्द वाहिद, इबाद जमा। रसूलुहु, ये भी दो टुकड़े बनते हैं। आप बताएं कैसे दो टुकड़े बनते हैं? पहला लफ्ज क्या है? रसूल, रसूल और दूसरा हु। शाबाश। ये एक ही सिस्टर की आवाज आती है, बाकी कोई जहमत नहीं करता बताने की। देख लो।
हम चुप से हम भी बोल रहे हैं रसूल, रसूल हूँ ना। उसका। वो ठीक उसका है, जी। अब आगे चलते हैं। नहीं मैम ने मतलब ऐसे बात कर रही तो अब्दुहू लफ्ज का इजाफा हुआ है। अजान में हमने कहा था वह अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, है ना, ये कहा था। यहाँ आ गया वह अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे। ये उसके बंदे वाली चीज, बात, कॉन्सेप्ट नया आया है, और उसके रसूल। अब्दुहू का लफ्ज का इजाफा किस लिए किया गया, ये बताने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। बंदा क्या होता है, जो गुलामी करता है। ठीक है, हम अल्लाह के गुलाम है ना, तो जी। सब इंसान अल्लाह के गुलाम हैं। तो यहाँ बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। पिछली उम्मतों में लोगों ने नबियों को अल्लाह का बेटा करार दिया था या शरीक बना दिया था। अब जब हम हर नमाज में ये कलिमात बार बार दोहराते हैं, तो शिर्क का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। यानी इस तरह बंद हो जाता है कि वो उसके बंदे हैं, उसके बेटे नहीं हैं, उसके शरीक नहीं हैं। जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन बंदे हैं, बेहतरीन अब्द हैं, उसी तरह हमारे लिए वो बेहतरीन नमूना भी हैं पैरवी करने के लिए, कि हम अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदे बनकर रहेंगे, अपने प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करके। इस बात को जहन में अच्छी तरह बैठा लें। वर्कबुक में इस पे एक सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, आपने उसका जवाब इसके मुताबिक देना है कि यहाँ अब्द का इजाफा क्यों किया गया है। तो आपने जवाब में लिखना है कि पिछली उम्मतों में लोगों ने नबी को अल्लाह का बेटा और शरीक बना दिया था। तो यहाँ हम अजान में ये बंदे का लफ्ज बोल के शिर्क का दरवाजा मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके और रसूल इसके हैं। रसूल हैं। हाँ, शाबाश। जब ये स्लाइड आए, मैं कहूँ या ना कहूँ, ये जब ये बना होगा ना, तो जी आप खुद ही दोहराना शुरू कर दिया करें। जी। अब ये भी एक दुआ है, वजू के बाद पढ़ने वाली। ठीक है, वजू के शुरू में आपने कहा था बिस्मिल्लाह, वजू जी कर लिया, फिर आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु मोहम्मदन व अब्दुहु रसूलुहु। व रसूल। उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है जो अब नजर आ रही है। ये क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा, ए अजान अल्लाह, इजअलनी, बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, खूब तौबा करने वालों में से। अल्लाहुम्मा का मतलब तो आप सबको पता है, ए अल्लाह। ठीक है, इसका मतलब ए अल्लाह होता है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। इजअलनी, ये जो लफ्ज है ना, ये दो टुकड़े बनते हैं, यानी दो हिस्सों से मिलकर एक लफ्ज बना हुआ है। अगर हमें ये टुकड़े बनाने पड़े ना, तो ऐसे बनते हैं। इजअल अलग लफ्ज है, नी अलग है। इजअल का मतलब है बना दे, नी मुझे, बना दे मुझे। अगला लफ्ज है मिनत तव्वाबीन। अब इसमें मिन का मतलब तो आपको पता है, ये हर्फ है, और इसका मतलब है से। जी। अत्तवाबीना, आप सब बताएं, ये इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? इसम है। कैसे पता चलता है? इसके शुरू में अलिफ है। अल लिफलाम। है। शाबाश। इसके शुरू में अल। ठीक है, एक और भी पहचान है इस, उससे भी पता चल रहा है। क्या पता कैसे, क्या पहचान है, एक और भी पहचान है। कानून। जानून, शाबाश, इसके आखिर पे जानून है। जी तो अल जो है ना, हमें ये बता रहा है कि ये इसम खास है, और जो जानून है ना, ये हमें ये बता रहा है कि ये जमा है जी। और मुजक्कर है। ये निशानी होती है, मुजक्कर वाले इसम के जमा बनाने की निशानी होती है कि उसके आखिर पे वाव नून आ रहा होता है या फिर जानून आ क्या रहा है। यानो होता है जी। ठीक है, मेरा तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से। यहाँ खूब का लफ्ज क्यों लिखा है? ये जो ता के ऊपर तशदीद, वाह के ऊपर तशदीद है ना, वाव के ऊपर तशदीद, जी ये इसमें शिद्दत लेके आती है, बहुत ज्यादा तौबा करने वाले। ठीक है, तो जी। ताबा का मतलब होता है, असल में ये तव्वाबीन कहाँ से बना है, ताबा से। ताबा का मतलब होता है पलटा, पलट के आना। ठीक है, ताइब जो होता है ना, वो पलटने वाला होता है। मैं और आप जब तौबा करते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, ताइब होते हैं। जी। और तव्वाब क्या होता है, जो बार 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 पलटता है, बार 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 पढ़ने पलटता है, वाला। बार बार तौबा करता है। तो वजअलनी, अगले अल्फाज क्या है, वजअलनी। अब ये कितने टुकड़े बनेंगे, तीन टुकड़े बनेंगे। तीन। वहां अलग हो जाएगा, अल इजाल या अलग हो जाएगा, ताअल। नी अलग हो और जाएगा। अलग। हाँ, जी और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। तो वाह का मतलब होगा और,
इजल का मतलब होगा बना बना दे दे नी नी मुझे। मुझे, मिन का मतलब आप पढ़ चुके हैं, से इनसे अल मुतत्तहिरीन, पाक मुतत्तहिरीन। साफ रहने वाले, हाँ, ये तहारत से है, पाक साफ रहने वाले। वालों में यहाँ से। भी ये जो हा के ऊपर तशदीद है ना, इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, शिद्दत है, कि जी। वो पाक साफ रहने वाले। अब ये भी इसम है, और आपने पहचान लिया, अल से पहचान लिया कि ये खास इसम है, या नून से आपको पता चला ये मुजक्कर जमान, इसम की मुज़क्कर और जमा जमा। है। जमान। तो बना दे मुझे पाक साफ और साफ रहने वालों में से। इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? इंसान बार बार तौबा करने की तरगीब इंसान को इस दुआ में दी गई है, क्योंकि इंसान से बार बार गलतियां भी तो होती हैं। अभी हम बड़े अच्छे तरीके से नमाज पढ़ेंगे, रोएंगे, माफी मांगेंगे, उठ के जाएंगे, तो फिर हमसे कोई गलती हो जाएगी, फिर कोई गुनाह हो जाएगा। तो इंसान से बार बार गलतियां होती हैं, वो करता है, तो उसको तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा की शराइत 5 होती हैं। सिर्फ ये कह देना कि अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, सिर्फ ये कह देना कि अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, ये काफी नहीं है। 5 काम हम करेंगे तो तौबा बनती है। वो 5 काम यकीन के साथ करने हैं, तो फिर अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हैं। 5 काम कौन से हैं? सबसे पहले अपनी गलती का एतराफ, मान लेना। पहली बात, मान लें कि जी। मैंने गुनाह किया है, मान लें कि हाँ मैं गलत था, हाँ मैंने गलती की है। दूसरी बात, शर्मिंदगी, शर्मिंदा हूं कि मैंने गलत किया है, मैंने अपने रब की नाफरमानी की, मैंने अपने नबी की तालीम पर अमल नहीं किया। इस बात का दिल में दुख, अफसोस और शर्मिंदगी होनी चाहिए। फिर तीसरी बात, दोबारा दोबारा ना करने का अज़्म, यानी पक्का इरादा इरादा कि मैं करो। दोबारा ये काम नहीं करूंगा, दोबारा ये गलत काम, ये गुनाह नहीं करना मैंने। चौथी बात, जो गलती की है उसकी अगर तलाफी हो सकती है, जो पहले गलती या गुनाह की शक्ल में जो नुकसान कर लिया है उसको पूरा करने की कोशिश करना। ये जिनका हक मारा है उसे लौटाने का अज़म करना। हक अगर अल्लाह का मारा है तो अल्लाह को उसका हक वापस करने का अज़म। अगर जी। बंदों का हक मारा है तो बंदों को उनका हक वापस करने का अज़म। ये चौथी शर्त है। पांचवी पे जाके तौबा मुकम्मल होती। पांचवा नंबर होता है जुबान से तौबा की अदायगी, अस्तगफिरुल्लाह कहना, या कोई अपने लिए माफी की अल्फाज बोलना। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ पांचवें पे अमल करते हैं, पहले 4 को भूल जाते हैं। ये तौबा नहीं होती। ये सब मिलेंगे तो फिर तौबा होगी। और इसको याद रखना है कि ये 5 शर्तें कौन सी हैं तौबा की, ये मिला के एक तौबा बनाती हैं। और जो लफ्ज है तहारत वाला, मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वाले, वहां जो लफ्ज तहारत है उससे मुराद पाकी है। और असल में पाकी क्या होती है? पाकी से मुराद है मकान की पाकी, जिस जगह पे आपने नमाज पढ़नी है, नमाज इबादत करनी है, वो जगह पाक होना, आपका लिबास पाक नमाज साफ का होना, पाक होना। अकीदा की पाकी, दिल दिमाग में अल्लाह की जात के नमाज अलावा और किसी की इबादत का ख्याल ना हो, ख्यालात की पाकी। ठीक है, वही दिल और दिमाग दोनों, अकीदा और ख्याल दोनों पाक साफ हों, यानी हर किस्म की पाकी जो है ना, उसके लिए हम ये दुआ करते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, अल्लाहुम्मा, या ए अल्लाह बना अल्लाह, दे मुझे तौबा बना दे करने मुझे वालों मेरे में से, तव्वाबीन, तौबा करने वजअलनी वालों में से, मिनल वजालनी, और मुतत्तहिरीन, बना दे मुझे बनाने मेरे मुझे और मिला बना के दे मुतत्तहिरीन, मुझे पाक 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 साफ 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 रहने रहने रहने, वाला। वालों में पाक से। साफ रहने वाले से। शाबाश। अब ये आपने बहुत अच्छी तरह दुआ याद करनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से लेके मिनल मुतत्तहिरीन तक, और वजू के बाद ये दुआएं पढ़नी हैं। जब आप ये दुआएं पढ़ेंगे, आप में से हर एक के लिए अल्लाह ताला जन्नत में 8 दरवाजे खोलेंगे। कितनी अच्छी बात है! हम इतनी सी नेकी करते हैं, अल्लाह ताला हमें इतना बड़ा इनाम दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा ग्रामर का टाइम है, तो ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर में आज हमने 3 नए हर्फ सीखने हैं, हर्फ सीखने हैं। ठीक है, पहले हम इसम सीखा करते थे, फिर हमने हर्फ सीखने शुरू किए। और आज हम कौन से हर्फ सीखेंगे? बी, फी, बी। अला। इन हरूफ को हरूफे जर कहते हैं, इंग्लिश में जैसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं ना, वो। जी पिछली जी जी। क्लास में भी 3 हरूफ सीखे थे, वो भी हरूफे जर थे। आज जो 3 हरूफ सीखने हैं ये भी हरूफे जर हैं। ठीक है, तो हम सीखेंगे कैसे ये ग्रामर को, किस तरह, टीपीआई के जरिए। टीपीआई क्या होती है सब बताएं।
टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। और वो क्या होती क्या है, उसके 7 स्टेप कौन से हैं? कान से सुनिए, आंखों से देखिए, दिमाग से सोचिए, जुबान से बोलिए, से इशारा आखिर पे आके बोलती बंद हो जाती है, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, ना इशारा ना आवाज। ठीक है जी। लफ्ज की 3 किस्में, मैं आज इसे नहीं दोहरा रही, इसे आगे चलते हैं, हम हर्फ सीख रहे हैं, बाद में फेल सीखेंगे। और इस बात को गौर से देखा करें, जब मैं आपसे पूछती हूँ ना तो आप चंद एक ही बोल रहे थे, ये देखिए ये हर क्लास में आपको ये स्लाइड दिखाई नहीं जाती। जी ये क्या लिखा हुआ है? इसम के सामने लिखा हुआ है ना, अल, दो जी। पेश दो जबर दो दो पेश, जेर दो वाव जबर, दो नून या जेर, नून वाव अलिफ ता। नून, या नून, ये क्या अलिफ है? ता। ये इसम की पहचान है, यही तो अभी कुरान की क्लास में मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको कैसे पता चला ये इसम है। आपको या अल से पता चलता है, या आपको ये तनवीन से पता चलता है, या फिर आपको वाव नून से पता चलता है, या फिर या आपको नून या से, नून से अलिफ पता ता चलता से। है, या फिर आपको अलिफ ता से पता चलता है। एक जी। और भी निशानी है, वो यहाँ नहीं लिखी हुई, अस्सलातु में मैंने आपको बताई थी, आखिर पे गोलता, बोलता का। है ना। जी जी। तो ये इतनी सारी निशानियां हैं, हर क्लास में ये स्लाइड आपको दिखाई जाती है, इसलिए अब जब इसम आप देखें ना तो आप फौरन पहचान लें कि ये इसम है। ठीक है। इसम का सवाल पूछते हुए मुझे आपने इंतजार नहीं करवाना, ठीक है। जब मैं पूछूं ये इसम है, फेल है, हर्फ है, तो इसम वाला जवाब तो फौरन दे दिया करें। अच्छा जी, अब ये हमारा इयादा है, यानी दोहराई है पिछले असबाक की, और वो क्या थी, हमने सबसे पहले ग्रामर में क्या सीखा था? इसम जमीर सीखे थे जो अलग अलग लिखे जाते हैं, और वो ये है ना। चले, अब अर्रहीम सेंटर, आप में से कोई इशारों से ये वाला टेबल करवाए। होगा वो, हम वो सब, आंता आप, आना मैं, आंतुम आप सब, नाहनु हम सब। हाँ ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा करवाया। ये जो बाकी सेंटर्स वाली है ना, अर्रहमान, अल करीम, अशकूर, और बाकी भी सब, तो ये जब कोई एक सेंटर से कोई बच्ची करवा रही हो ना, तो आप लोग वैसे ही साथ साथ खुद ब खुद ही कम आवाज में, लेकिन साफ इशारों के साथ खुद ही उसको रिपीट किया करें, इस तरह आपके जहन में वो चीज बैठ जाएगी। ठीक है। अब ठीक आगे है। चलते हैं। ये क्या था? दूसरे नंबर पे हमने ये वाला टेबल सीखा था, और इसको कहते हैं, ये भी इसम जमीर ही हैं, लेकिन ये जोड़ के लिखे जाने वाले इसम जमीर हैं। जी ये टुकड़े कुरान मजीद की हर लाइन में आते हैं, ये आपको हर लाइन में नजर आएंगे। कोई कुरान उठाएं, कोई लाइन उठाएं, वहां कम से कम एक दफा इनमें से कोई एक लफ्ज जरूर लिखा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ये ना किसी के साथ ताल्लुक, अपनायत जाहिर करता है, किसी की मिल्कियत जाहिर करता है, यानी उसका, उसकी, उसके, उसको, उनका, उनकी, उनके, उनको, आपका, आपकी, आपके, आपको, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। ठीक है। और आप सबका, आप सबकी, आप सबको, आप सब से, और ये क्या है, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, ये सब इनके मतलब होते हैं। उर्दू के लिहाज से हम जो मुनासिब लफ्ज होते हैं हम वो बोल लेते हैं। तो ये क्या बनता है? इसको कौन करवाएगा? अल करीम सेंटर से कोई करवाए ये वाले टेबल को, अल करीम सेंटर। वो उसका हम उन सबका वो उसका हम उन सबका का आपका ये मेरा तुम आप सबका ना हमारा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया, वेरी गुड। अल करीम सेंटर। अच्छा जी, अब ये भी दोहराई, ये क्या हमने प्रैक्टिस की थी कि वो जो जोड़ के लिखे जाने वाले इसम ज़मीर है ना, उन्हीं किसी इसम के साथ या किसी हर्फ के साथ जोड़ के प्रैक्टिस करें। तो ये इसम है, ये हर्फ नहीं है, ये इसम के साथ जोड़ के प्रैक्टिस है। तो ये वाला हो गया रब्बू हु, उसका रब। इसको अर्रहमान सेंटर से कोई करवाए इशारों के साथ। रब्बू उसका रब, रब्बू हम सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, वेरी गुड, आज तो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हुए हैं सारे, शाबाश। अच्छा, आज का सबक क्या है? नहीं, ये कल पिछला सबक है, पिछली क्लास का। क्या सीखा था हमने? हुरूफ सीखने शुरू कर दिए थे, और हमने सिर्फ 3 हुरूफ सीखे थे पिछली क्लास में। कौन से? ली या ला। ली, इसका मतलब होता है ली, मिन का ये मतलब से, अन से, का मतलब अन से से, या के आन बारे से में। या बारे वेरी में। गुड। तो अब फिर हमने क्या प्रैक्टिस की थी?
ہم نے یہ پریکٹس کی تھی کہ اب ان حروف کو ہم نے ان اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کے بولنا ہے، لکھنا ہے. جیسے ربو اسم تھا، اسم پہلے سیکھا تو اسم کو اسم ضمیروں کے ساتھ جوڑ جوڑ کے لکھنا شروع کیا. ربو ہو، ربو ہوں، ربو کا، ربی. اب حروف سیکھ رہے ہیں تو حروف کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کے بولنا اور لکھنا سیکھیں گے. لہو، لہم، لکا. ٹھیک ہے، ایسے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ دیکھیں لیے، لا یا لی کا مطلب یاد کرنے کے لیے ہم نے ریفرنس یاد کیا تھا. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ہے. من کا مطلب یاد کرنے کے لیے ہم نے کون سا ریفرنس یاد کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان کا. اور رضی اللہ عنہ کا مطلب سیکھنے کے لیے ہم نے کون سا ریفرنس یاد کیا تھا؟ رضی اللہ عنہ سے. ان کے لیے. ٹھیک ہے، ان کا مطلب سے یا کے بارے میں، تو رضی اللہ عنہ اس کا ریفرنس تھا. اب آپ دیکھیں یہ ہم نے وہی لا یا لی اور پھر من اور پھر ان کو ہم نے اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ جوڑ کے اب پریکٹس کرنی ہے. تو لاہو والا ٹیبل ان نافع سینٹر سے کوئی کروائے اشاروں کے ساتھ. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاگا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاگم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. شاباش، ٹھیک ہے سسٹر، اشارے بھی ٹھیک کیے ہیں. بس یہ جو لا لفظ ہے نا، اس کو لا جھٹکا دے کے چھوڑ دینا، مطلب صرف ل بولنا ہے، لا نہیں بولنا. وہ جو لا ہوتا ہے نا، لام زبر الف لا ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لنا، لکم، لنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے اگلا؟ جی اچھا، اس کے بعد ہے من کا ٹیبل. ٹھیک ہے، من کے ٹیبل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ من کو جوڑنا ہے ہو اور اسم ضمیر کے ساتھ. اس کو الشکور سینٹر والے کروائیں. اس سے، ان سب شاباش، ٹھیک ہے. آواز کم تھی لیکن آپ نے صحیح کروایا. اس کے بعد ان کا ٹیبل. دورانی والے آج نہیں ہیں. چلے جی، ان والا ٹیبل ہم سارے مل کے کرتے ہیں. سارے میرے ساتھ مل کے کرائیں. ان ہو، ان ان سے، ہو سے، ان ہم سب کا، ان آپ کا، ان میرا، ان ان تم سے. سب کا، انا ہم آپ سب سے، نہ ہم سب سے. ہاں، کچھ لوگ بیچ میں کہہ رہے تھے آپ اس کا، انہوں اس کا، انہم ان سب کا. ان سب کا نہیں کہنا، ان سب سے. ان کا مطلب ہے سے یا کے بارے میں. ٹھیک ہے، آگے ہے گہری سانس لیجئے. ابھی تک ہم نے ریویژن کی ہے پچھلی کلاسز کی، اس لیے گہری سانس لیں اور اللہ سے دعا کریں. اب نئی سی چیز سیکھنے لگے ہیں، اس لیے دعا کریں ربی زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اضافہ فرما. شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. آج کا پہلا حرف ہے بی. بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. کبھی کبھی اس کا مطلب کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے بڑی شروع میں سیکھا تھا پہلی کلاس میں. بی سے، اسم، اسم، اللہ ہی اللہ، بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے. یہ ریفرنس ہے. اگر آپ کو بی کا مطلب بھول جائے نا تو بسم اللہ یہ کہہ لیں اور سوچیں اللہ کے نام سے، آپ کو فوراً یاد آ جائے گا بی کا مطلب ہوتا ہے سے. اب یہ جو بی ہے نا، اس کو ہم اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کے پریکٹس کریں گے اور وہ کیا بنے گی؟ بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہی اس سے، بہم ان سب سے، سب سے، بکا آپ سے، آپ بی سے، مجھ سے، مجھ سے، بکم آپ سب سے، آپ سب سے، بنا بنا ہم ہم سب سے. ٹھیک ہے، تیسری دفعہ پھر کروا رہی ہوں. بہی اس سے، بہم ان سب سے، سے، ہم بکا سب آپ سے، سے، بی مجھ آپ سے، سے، بکم مجھ آپ سے، سب سے، ہم آپ بنا سب ہم سے، سب بنا سے. ہم سب سے. شاباش. اب الرحیم سینٹر سے کوئی یہ والا ٹیبل کروائے، بہی والا. بھی اس سے، بھی ہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ویسے مجھے نظر نہیں آ رہا جو بھی کہہ رہے ہیں. یہ 3 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن میں 3617 دفعہ آئے. کتنی اچھی بات ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن بہت آسان ہے. آپ دیکھیں، آپ نے آج صرف بی، فی اور اللہ کا ترجمہ سیکھنا ہے.
اور یہ 6 لفظ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. اب آپ کریں گے کیا؟ صرف بی کو ان سب کے ساتھ جوڑیں گے، پھر فی کو ان سب کے ساتھ جوڑیں گے، پھر الا کو ان سب کے ساتھ جوڑیں گے. اور یہ بس اتنا سا کام جو ہے نا، یہ قرآن کے 3600 سے زیادہ الفاظ بن جائیں گے. یعنی قرآن میں یہ اتنی دفعہ آئے ہوئے ہیں. تو اب ہم کرتے ہیں فی پہ پریکٹس. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. فی کا مطلب آپ کیسے یاد رکھیں گی؟ ہم اردو میں کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ. یعنی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں کچھ دینے کے لیے فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے نا. اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ فی ہے. ٹھیک ہے، فی فاضل یا فی کا مطلب میں. تو اس سے نیا ٹیبل بن جائے گا. ہم فی کے حرف کو پکڑیں گے اور ہی، ہم، کا، جی، کم، نا کے اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ جوڑ کے نئے الفاظ بنائیں گے. وہ کیا بنیں گے؟ فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب ان میں، سب میں، فی کا فی آپ کا میں، آپ فی میں، جا. فی فیزا مجھ آپ سب یہ میں لفظ ہے فجا، مجھ میں. فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیجا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. فی ہی، فی ہم، فی کا، فیجا، فی کم، فینا. اب آپ میں سے کوئی کروائے. الکریم سینٹر. اس میں فی ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. شاباش، اچھا ہے. لیکن فی نہیں کہنا، فیجا. ٹھیک ہے، فیجا. شاباش، فیجا صحیح سوری. کروایا. اب تھوڑی سی بول چال کر لیتے ہیں. خیر کا لفظ ہم نے الصلاۃ خیر من النوم میں سیکھ لیا نا. خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر، اچھا، گڈ. ٹھیک ہے، اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، اس لیے ہم اب جو آگے بول چال کریں گے اس میں ہم ہاں میں جواب دیں گے. دیکھیں، جیسے یہ ہے، یہ سوال کیا ہے؟ حل فیہ خیر، کیا اس چیز میں بھلائی ہے؟ تو ہم کہیں گے حل کا جواب ہم دیں گے نام سے، اور پھر آگے فی ہی کا جواب فی ہی سے، سی ہی آئے گا. فی ہی نام، فی ہی خیر، جی ہاں اس میں بھلائی ہے. نام فی ہی خیر، جی ہاں اس چیز میں بھلائی ہے. اگر ہم کہیں حل فی ہم خیر، کیا ان سب میں بھلائی ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ فیہم خیر، شاباش، نام فیہم خیر، جی ہاں ان سب چیزوں میں بھلائی ہے. پھر اگر کوئی کہے حلفی کا خیر، یعنی آپ میں بھلائی ہے، کیا آپ میں بھلائی ہے؟ نام نام، فیجا خیر. نام فیزا فیجا خیر، خیر. شاباش جی، مجھ میں بھلائی ہے. ٹھیک ہے، فیکا کا جواب فیجا سے آ جائے گا، نام فیجا خیر. اس کے بعد حل فیکم خیر، نام. نام فینا خیر. فینا نام فینا خیر، ٹھیک ہے، حل فیہ خیر، نام فیہ خیر، نام فینا حل خیر. فیہم خیر، حال فی نام نام فینا فیہم خیر، خیر، حل فیکا خیر، نام نام فی فیجا کا خیر. خیر، فیجا خیر، نام فیجا خیر، حل فیکم خیر. نام نام فینا فینا خیر. خیر. شاباش، ٹھیک ہے. آخری لفظ الا. الا کا مطلب ہوتا ہے پر. اب آپ الا کا مطلب کیسے ذہن میں رکھیں گے؟ بہت آسان ہے. السلام علیکم سے، علیکم السلام سلامتی ہو. یہ جو علیہ لفظ ہے نا، اصل میں یہ الا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پر. کم آپ سب، السلام علیکم آپ سب پر سلامتی ہو. یہ ہم سلام میں کہتے ہیں. تو بس آپ نے سلام سے الا کا مطلب پر یاد رکھ لینا ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ علیہ اس پر، علیہم ان سب علیہم پر، ان سب پر، علیہ علیہ آپ پر، آپ پر، علیہ. علیہ مجھ پر، ٹھیک ہے، یہ علیہ آپ علیہ سب پر، لفظ ہے. علیہ علیہ ہم مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، ہم سب علیہ پر اس پر، علیہم علیہ ان سب ان پر، سب پر، علیہ علیہ آپ پر، علیہ علیہ مجھ پر، مجھ پر، علیکم علیہ آپ سب آپ پر، سب پر، علینا علیہ ہم ہم سب سب. پر. اب آپ میں سے کوئی کروائے. الرحمان سینٹر سے کوئی کروائے یہی والا. علیہ اس پر، علیہ ان سب پر، علیہ آپ پر، علینا مجھ پر، علیہ آپ سب پر، علیہ ہم سب پر، ٹھیک ہے، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. علینا ہم سب ٹھیک پر. ہے، ماشاء اللہ. تو ہم نے کیا دیکھا کہ ربی ہی، ربی ہا. یہ ربی ہی کا لفظ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، فی ہی، بھی، علیہ. یہ ہا ہا کہاں سے آ گیا؟ پہلے نہیں سیکھا نا.
लेकिन हा ज़बर अलिफ हा का लफ्ज हमने इसम सीखते हुए ठीक सीखा है। था। हु के मुकाबले में हु के मुकाबले में हा सीखा था। हमने कहा था हु का मतलब होता है उस मर्द का, उस मुजक्कर का, और हा के लिए हमने कहा था उस मुअन्नस का, उस औरत का। ठीक है। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। हुआ का जवाब मुख्तलिफ जवाब है हिया मुअन्नस में, और हु का मुअन्नस में जवाब होता है हा। ठीक है। तो जब हम कहेंगे ना बिही, तो इसका होगा उस मर्द का, उस मुजक्कर का, सॉरी बिही उस मर्द से, उस मुजक्कर से, बिहा उस मुअन्नस से, उस औरत से, फी ही उस मुजक्कर में, फीहा उस मुअन्नस में, अलैहि उस मुजक्कर पर, अलैहा उस मुअन्नस पर। मतलब अगर सलाम है तो देखिए अलैहि सलामती हो उस मर्द पर, अलैहि हो जाएगा ना, तो फिर कहेंगे सलामती हो उस मर्द पर, उस मुजक्कर पर। जब हम कहेंगे अलैहा तो इसका मतलब होगा सलामती हो उस मुअन्नस पर, उस औरत पर। ठीक है, ये फर्क है बस। तो ये इस तरह एक नया टेबल बन जाएगा मुअन्नस के लिए। ये वो रिपीटिशन है जो अभी पीछे से आप सीखते आ रहे थे ना, वो सारे टेबल इकट्ठे एक जगह पे लिख दिए। अब ऐसा करें कि अर्रहमान तक हो गया था, उसके बाद है अन्नाफे सेंटर। अन्नाफे सेंटर वाले ये बी वाला टेबल जो नजर आ रहा है ना सामने, इसको इशारों से मिल के करवाएं। अन्नाफे सेंटर इन सबसे बेकाफी बिही इसके नहीं भी हम सबसे भी आपसे इसके भी आप सबसे भी से। शाबाश। ठीक है। अब अशकूर सेंटर वालों की बारी है। आप सबने मिलकर इशारों के साथ ऊंची आवाज के साथ फी वाला टेबल करवाना है, फी ही वाला टेबल करवाएं। कभी فيهم إن सबसे बेकाफी शाबाश। ठीक है। फर्क आपको नजर आ रहा है ना, बी कहेंगे तो फिर आप तर्जुमे में से लफ्ज बोलेंगे। जब आप फी वाला टेबल थी करवाएंगे तो फिर आप में वाला टेबल करवाएंगे। ठीक है। अब जब अला वाला टेबल आएगा तो फिर सबने पर कहना है। ठीक है। तो अला वाला टेबल हम सारे मिलके करवा देते हैं। ठीक है। चलें जी, सारे मिलके करवाएं। अलाई ही उस पर, और अलैहि उन सब उन पर, सब पर, अलैका अलैका हम हम पर, पर, अलैका उस पर, अलैका अलैका हम आप सब सब पर, पर, अलैना अलैना मुझ हम सब पर। पर। माशाल्लाह। ठीक है। तो ये उसके फिर एक दफा आपको बताए जा रहे हैं रेफरेंस क्या है। बी का रेफरेंस बिस्मिल्लाह, फी का रेफरेंस फी सबीलिल्लाह, अला का रेफरेंस अस्सलाम वालेकुम। मैं इशारा करने लगी हूँ, आपने मुझे बताना है मैं ठीक कर रही हूँ। बेहिम। ठीक है। जी ठीक। ठीक है। अच्छा जी। फीकुम। गलत है, गलत है। हाँ, इसका इशारा ये होना चाहिए ना, फीकुम। जी ठीक है। अलैहि। अलैहि, ये इशारा ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है। क्यों गलत है? इस साइड पे। इस साइड से करना है। हाँ। जी जी ठीक है। ये अलैहि लिखा हुआ है, ये ही जो है ना मुजक्कर के लिए होता है। अगर अलैहा लिखा होता तो फिर मुझे ये इशारा करना चाहिए था। ठीक है। मुजक्कर मुअन्नस का फर्क है। तो हलिल्लाहु रहीमुन बिही, यानी हल का मतलब क्या, अल्लाहु अल्लाह, रहीमुन मेहरबान है, बिही उस पर या उससे। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, ऐसे जवाब आएगा। अगर उन सब के बारे में पूछा जाए, हलिल्लाहु हल क्या, अल्लाहु अल्लाह, रहीमुन मेहरबान है, बिहिम उन सब पर या उन सब से, तो आपने कहना है नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। उनकी बात हो रही है ना, उसकी बात हो रही है, तो ये जवाब ऐसे ही आएगा। बिही का जवाब बिही से आएगा, बिहिम का जवाब बिहिम से आएगा। मुख्तलिफ कहाँ पे होता है? जब मेरी और आपकी, आप सबकी और हम सब की बात होती है, वहां पे जवाब थोड़ा सा फर्क आता है। वो कैसे? सवाल आता है हलिल्लाहु रहीमुन बिका,
کیا اللہ آپ پہ مہربان ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے نا، جی ہاں اللہ مجھ پہ مہربان ہے. مجھ پہ کی عربی لکھیں گی، بکا نہیں لکھیں گی. پھر مجھ پہ کی عربی ہوگی بی. نام اللہ اللہ رحیم نام بی. ٹھیک ہے، رحیم بی. اور اگر کہا جائے حل اللہ رحیم بکم، کیا اللہ آپ سب پر مہربان ہیں، تو یہ کم کا جواب نا سے آیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رحیم بنا. حل علیہ دین، یہ فرق نوٹ کریں، دین لفظ ہے، دین لفظ نہیں ہے. دال کے نیچے زیر نہیں ہے، دال کے اوپر زبر ہے. یہ جو دین ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے قرض. قرض، قرضہ نہیں لیتے وہ. اور دین لفظ جو ہے نا، وہ سورت فاتحہ میں پڑھا تھا، وہ دین ہوتا ہے، نظام زندگی یا پھر بدلہ. تو حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ نہ. ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، ہاں نہیں علیہ آ رہی تھی. اس پر دین، اس پر قرض نہیں ہے. پھر حل علیہم دین، ما علیہم ماں دین. علیہم دین. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھوں آپ پہ قرض ہے؟ ہاں هل ماں عليك دين؟ ماں ماں ما علیہ علیہ. علیہ ہاں، دین. ما علیہ دین. اور اگر میں آپ سب سے پوچھوں کیا آپ سب پر قرض ہے؟ حل علیکم دین، ما هل ماں علیہ دین. ما علینا دین. ٹھیک ہے. تو یہ دوبارہ وہی والے ریپیٹ ہو رہے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کو بتانے ہیں. حل علیہ دین، آپ سب میرے ساتھ مل کے کریں، ما علیہ دین. ماں حل علیہ علیہم دین، ما ماں علیہم دین. علیہم دین. حل علیکا دین، ما ماں علیہ دین. علیہ حل دین. علیکم دین، ما علینا ماں دین. علینا دین. چلے جی، الحمدللہ کلاس ختم ہوئی. نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. آج کا نقطہ یہ ہے کہ آپ جو بھی یاد کریں، 1 منٹ، آپ جو بھی یاد کریں آپ بھول جائیں گے. کوئی وقت ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، تو بھولنے سے بچنے کے لیے ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بار بار دہراتے رہیں تو پھر نہیں بھولتا. تو اس لیے آپ دہرایا کریں، دہرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دہرانا ہم نے ہے کس طریقے سے. دہرانے کے اچھے طریقے اختیار کرنے چاہیے. ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں. اگر آپ 100 بار، کوئی 1 منٹ، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو، یہ جو ڈبے ہیں نا، یہ 100 ڈبے ہیں. آپ کو 100 ڈبے نظر آ رہے ہیں. آپ سمجھ لیں یہ ہر ڈبہ ایک بات ہے، اور آپ نے 100 باتیں یہ سیکھ لی. سیکھ لی اس لیے یہ پیلے رنگ کے ہیں. اچھی بات ہے، آپ نے سیکھ لیے. لیکن ہوگا پتہ ہے کیا؟ وہ جو 100 باتیں آپ نے سیکھی تھیں پیلے رنگ کی، پیلے ڈبے، ان کے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 70% 1 گھنٹے بعد آپ بھول جائیں گے. یہ جو آپ نے ابھی کلاس میں چیزیں پڑھی ہیں نا، یہ آپ کو تھوڑی دیر میں بھول جائیں گی. کتنی دیر میں آپ کو یہ بھول جائیں گی؟ 1 گھنٹے بعد. آپ کو صرف یہ جو پیلے ڈبے ہیں نا، یہ یاد رہیں گے، یعنی بس اتنی باتیں یاد رہیں گی. باقی یہ جو نیلے ڈبے ہیں، یعنی اتنی ساری باتیں بھول جائیں گی. تو اتنا زیادہ بھولنے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ 1 گھنٹہ کے بعد دہرائیں، تو وہ ساری کی ساری باتیں آپ کو ایک دن تک یاد رہیں گی. ٹھیک ہے، لیکن 1 دن بعد بھی 70% آپ کو پھر بھول جائیں گے. تو اگر آپ 1 دن کے بعد اس کو دوبارہ دہلا لیں، تو پھر آپ کو وہ ساری باتیں، 100 کی 100 باتیں 1 ہفتے تک یاد رہیں گی. لیکن 1 ہفتے بعد پھر وہ آپ کو 70% پھر بھول جائیں گی. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو 1 مہینے بعد پھر دہرائیں گے، تو آپ کو وہ باتیں یاد رہیں گی 1 مہینے تک. تو آپ 1 مہینے بعد دہرائیں گے تو پھر آپ کو 6 مہینے بعد دہرانا پڑے گا، ورنہ پھر 70% بھول جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کی جو باتیں سیکھ رہی ہیں یہ آپ نہ بھولیں، تو پھر آپ دہرائیں. کب دہرائیں؟ 1 گھنٹے بعد دہرائیں، 1 دن بعد پھر دہرائیں، 1 ہفتہ بعد پھر دہرائیں، اور پھر 1 مہینے کے بعد پھر دہرائیں، پھر 6 مہینے بعد دوبارہ دہرائیں. تو الحمدللہ ہم نے آج سبق نمبر 6 مکمل کر لیا. 63 الفاظ سیکھ لیے. یہ قرآن میں 23,267 دفعہ آئے ہیں. یہ آپ کی
पॉकेट वर्क और होमवर्क का रिमाइंडर है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। ये छोटे छोटे लफ्ज खुद भी सीखना आसान है और दूसरों को भी सिखाना आसान है। आप दूसरों को सिखाएं, इससे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगी। और अगर आपको सिखाने के लिए, टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह अल काविश, अल फलाह मंजिल लाहौर और काविश वेलफेयर सेंटर आपको मिलकर ट्रेनिंग भी देंगे टीचर बनने के लिए। आइए अल्लाह ताला से मिलकर दुआ करते हैं कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व आमीन। बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा जी, अब आप बताएं, कोई सवाल आपने करने हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने पहली वीडियोस पर हौसला अफजाई की थी, तो हमने आज भी बना के सेंड किए हैं, तो वो आप देख लीजिए। हाँ इंशाल्लाह वो मैं देखूंगी, जैसे ही मैं देखूंगी फिर आपको उस पे ना फीडबैक भी दे दूंगी। मुझे जी असल मैम में जी, टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, तो जब जरा खुला टाइम होता है ना तो मैं उस वक्त फिर तसल्ली से पूरी पूरी वीडियो देखा करती हूँ। और जैसे ही मैं वीडियो देखती हूँ फिर आपको जवाब भी दे देती हूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो मैम जी, भी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह चेक करके फिर आपको फीडबैक दूंगी। बाकी सेंटर्स भी अपनी वीडियोस बना के भेजा करें। जी मैम जी, रहीम सेंटर से की थी। और रहीम सेंटर, हाँ जी मुझे पता है, आपकी आवाज मैंने पहचान ली। ठीक है, सवाल नहीं है तो अब क्लास खत्म करें। ठीक है, अल्लाह चलिए जी, हाफिज। अब जाएं, जोहर की नमाज पढ़ें, सूरह कहफ पढ़ें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।